So, hello students, how are you all? I hope everyone is doing very nice. Yes, so welcome back everyone, welcome back. So, today, my dear students, we are going to continue with the chapter that we were discussing in the last class. So, how are you all? I am just checking students the comments. Yes, I'm just checking on with the comments. Let's wait. Okay. Yeah, I'm just checking it on my next phone. Okay. So, yes. Hi, students. How are you all? Yes. So, students, I am much interested into knowing about you all. What are you doing? How are you all? Are you understanding the topics that we are learning? तो अगर आप लोग यहाँ पे हो, if you guys are watching it and if you are able to just give me a comment or a chat so that I'll be proceeding it with the same. And if you're feeling the things are more dicey, and if you feel कि yeah, maybe we want to not able to let's say message, तो आप अपने coordinator को एक बार बोल सकते हो. So if there is any trouble, we can just resolve the same. So my chats are actually open, but let's see if you guys are messaging me with the same or not. Okay. So yeah, that's all. Hi students. Yeah. So let's proceed it guys in the last class. अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स तो हमने स्टार्ट किया था द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. सो उस पे हमने देखा था कि गाइस देयर वर काफी सारे चैप्टर्स दैट वी वर लर्निंग इट राइट. सो चैप्टर नंबर 1 देयर वाज बेसिकली व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. उसके बाद हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स व्हाट आर द सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है. उसके बाद स्टूडेंट्स वी हैव लर्नड अबाउट लाइक व्हाट वर द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Then in the fourth point, we have started with the recognition criteria and derecognition criteria. Today, we are going to learn about the measurement criteria, presentation, disclosure, and capital stuff. And along with that, we will also be learning about the qualitative characteristics, right? So far, students, do you remember all those things? Yes. So can you please see this, chapter? Yes. So in the last class, we have started with the objectives, elements, recognition, measurement, and the qualitative stuff. So, okay, guys, just give me a minute. Let me just check it. The things are going it as per the schedule. So, actually, I have to check it, my dear students. Yeah. Okay. I think that is working fine. So, if you are having any doubts, you are good enough to give me a comment. I'll be on the comment also. So, yes. Fine. Chalo. Okay, moving it further. So students, now you tell me better, what are the main objectives of making the financial reporting? तो मुझे पता है that I want my users, correct? Especially my primary users. प्राइमरी यूजर्स आपको पता है ना लाइक माई फाइनेंशियल लेंडर्स हो गए द शेयर होल्डर्स द इन्वेस्टर्स द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स टू नो अबाउट व्हाट माई कंपनीज करंट पोजीशन इट इज. यस, टू नो अबाउट द सिचुएशन, टू नो अबाउट माई कंपनीज फाइनेंशियल्स. सो उसके बारे में हम पहले ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम अपने फाइनेंशियल्स उन लोगों को अच्छे से प्रेजेंट करें in a way कि that the people understand it. Second, better, when I speak about the financial statements, आपको पता है कि it is going to be the set of 5 things. Correct? Financial position, statement of P&L account and OCI, then cash flow statements, notes to accounts, and statement of changes in equity. But then we have learned कि what are the elements of financial statements. So आपको पता है that elements of financial statements are also 5. Assets, liabilities, equity, income and expenditure, correct? Yes. Assets, liabilities, equity, income and expenditure. Let's understand the most important thing, which is known as RMPD criteria. So students, the first criteria that we have learned was about R, that is known as the recognition criteria. So I'm just starting it with the same recognition criteria, okay? So better the first recognition criteria and the recognition criteria. सो स्टूडेंट्स आप कभी भी ना आपको जब कोई भी स्टैंडर्ड को प्रेजेंट करना होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स को बनाना होता है, कोई भी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, नो मैटर यू टेक IAS 16, यू टेक IAS 38, आप IAS 2 ले लो, आपको कोई भी स्टैंडर्ड क्यों ना प्रिपेयर करना हो बच्चा, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज
कि आपको पर्टिकुलरली उस चीज को रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि क्या क्या वो एसेट की कैटेगरी में फॉल होगा पर्टिकुलर थिंग, क्या वो लायबिलिटी की कैटेगरी में फॉल होगा, क्या वो इक्विटी की कैटेगरी में फॉल होगा, क्या वो इनकम है या क्या वो एक्सपेंडिचर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू अंडरस्टैंड कि वेयर शुड आई रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो हुआ है। क्या मुझे इसको रिकॉर्ड करना है या पता चला कि जैसे कि अभी वो एसेट नो मोर है, क्यों? क्योंकि यू डोंट थिंक दैट आपको फ्यूचर से कुछ उसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगी, तो मुझे पता चलेगा कि गाइस अब वो एसेट अभी हमारे लिए एसेट के जैसा है ही नहीं, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अब हम नहीं मिलेगा। तो बच्चा अब मुझे उसको करना पड़ेगा डी रिकग्नाइज। अब लाइबिलिटी की जैसी बची नहीं है तो मुझे उसको करनी पड़ेगी डी रिकग्नाइज। सो दैट वाज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट वी हैव लर्नड इट। ओके, आप कोई भी स्टैंडर्ड स्टार्ट करो, हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स दैट RMPD क्राइटेरिया। अगर आपको एक बार RMPD क्राइटेरिया समझता है ना पर्टिकुलर कोई भी स्टैंडर्ड का, तो आई एम टेलिंग यू ट्रस्ट मी थिंग्स एंड कैलकुलेशन पार्ट बिकम्स रियली वेरी इजी। सो हमने ये भी दो चीज पढ़ी थी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म भी हमने पढ़ा था, डी रिकग्निशन भी हमने पढ़ा था। नाउ let's move towards, and today we'll have some calculative part, so it's going to be fun. Measurement basis. Students, I'll just give you one example. अगर आज हमने एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को परचेज किया है, से फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्लांट परचेज की एंड द परचेजिंग कॉस्ट इज लेट्स से फॉर एग्जांपल $50,000, ठीक है, $50,000। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगी, what will be the accounting entry? So I'll write account like that way. Property, plant and equipment account debit. It will fall under assets account debit. तो ये असेट में रिकॉग्नाइज हो गया, तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया तो मेजर हो गया। टू कैश बैंक या वट एवर द अमाउंट इट इज, किसको भी पे करना हो तो क्रेडिटर जिनको भी हमें पे करना है टू पेएबल करके मुझे 50K पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब ईयर एंड पे ये होगा ऑन द डे व्हेन यू रिकॉर्ड, इट इज नोन एज इनिशियल रिकग्निशन और इनिशियल, बेटर वर्ड में बोल सकती हूँ इनिशियल मेजरमेंट, कि ऑन द डे वन पे आपने रिकॉर्ड करा है एट 50,000। डू यू थिंक कि ईयर एंड पे भी दैट इज बेसिकली ऑन द सब्सिक्वेंट रिकग्निशन पे भी स्टूडेंट्स मुझे 50K पे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा? तो आपको पता है गाइस सब्सिक्वेंट रिकग्निशन पे सिचुएशन चेंज हो जाती है, आपको डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको मार्केट में शायद उस चीज की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैन गो ऑन अ डिफरेंट वे। सो पहली बात मेजरमेंट बेसिस पे आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जब बहुत पहली पहली बार वो परचेज हुआ रहेगा ना, तो वो कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड होता था। लेट्स से फॉर एग्जांपल लैंड, मैंने कोई लैंड परचेज किया है सी फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स पहले, तो वो एक हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मैं लिखी रहती हूँ, क्योंकि यू नो लैंड इज नॉट अ डिप्रिशिएबल एसेट, तो मैंने लैंड को कोई तो भी हिस्टोरिक वैल्यू पे रिकॉर्ड किया होगा, तो दैट इज नोन एज अ हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब लेट्स से आई हैव परचेस्ड अ लैंड लेट्स से 20 years prior फॉर $500,000। डू यू थिंक आज के डेट पे भी वो लैंड को मुझे इस पे ही रिकॉर्ड करना चाहिए? आपको लगता है कि 500,000 उसकी करंट वैल्यू हो सकती है? मुझे पता है कि भाई वो पक्का 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 बड़ा ही होगा, राइट, द वैल्यूएशन वुड हैव इंक्रीज, सो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू गिव यू द फेयर वैल्यू। तो मुझे मार्केट में चेक करना पड़ेगा कि भाई इसकी फेयर वैल्यू क्या आ रही है, एंड लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मुझे पता चला कि इसकी मार्केट वैल्यू है लेट्स से 7 millions। ओ माय गॉड, अब मुझे उसको 7 millions पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मुझे अब उसको 7 millions पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो दैट अमाउंट इज नोन एज फेयर वैल्यू। बच्चा लिसन टू मी अगेन केयरफुली। सो वेनेवर वेनेवर आपको मेजरमेंट पे आना है, वेनेवर यू वांट टू कम टूवर्ड्स द मेजरमेंट, द थिंग इज आपको चेक करना पड़ेगा ऑन द डे वन पे आपने उस चीज को किस वैल्यू पे मेजर किया है। Usually it will be measured at a historical or a purchase price. से लैंड मैंने परचेज किया है 20 years पहले एट द रेट ऑफ $500,000, बट अगर आज मैं उसके फाइनेंशियल्स और फाइनेंशियल पोजीशन पे परफेक्टली शो करूं, से फॉर एग्जांपल ऑन 31 December 2026, तो मुझे मालूम पड़ा कि भाई अगर इसको मैं सेल करती हूँ इन द फेयर वैल्यू
Today in the market, it is going to fetch me around 70 lakhs or 7 millions. Oh my god. So do you think this amount is correct and precise? And do you think this amount shows the correct financials? आप बोलोगे नहीं मैम, अगर आपने 5 लाख पे रखा है तो यू आर अंडरस्टेटिंग योर एसेट्स वेरी मच. गलत कर रहे हो आप, अपने फाइनेंशियल्स रॉन्ग शो कर रहे हो. सो इम्पोर्टेंट है हमें कि फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो जो मार्केट में अमाउंट मिलती है उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू. ओके, यस. अब वो कैसे चेंजेस होगा दैट आई विल बी शोइंग यू इनटू एवरी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स, राइट. बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉल्ड फेयर वैल्यू. कभी कभी बच्चा मुझे ना समझता नहीं है कि मुझे उस चीज को किस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो वी हैव टू मोर मेजरमेंट वैल्यू which is known as, guys, which is known as value in use, or we also have a concept called present value. Present value measurement. Okay, present value measurement. Okay, present value measurement. So let's start learning it one by one. First of all, historical cost means क्या? Historical cost means, better, the original amount the owner would have paid when you wanted to purchase. It's simple and highly verifiable, but it can become outdated as value changes over time. क्योंकि हाँ 10 years पहले जो आपने परचेस किया वो बहुत आउटडेटेड हो जाएगा. तो उसको करंट वैल्यू पे लाना बहुत जरूरी हो जाता है. तो बहुत पुरानी चीज है. ओके, या बट उसको अच्छे से आज की डेट में लाने को हम लोग बोलते हैं गाइस फेयर वैल्यू. सो व्हेन आई स्पीक फेयर वैल्यू मीन्स आज की डेट पे अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी है, लैंड है, तो अगर आप उसको सेल करते हो तो आपको कितना पैसा मिलेगा, या अगर आपके पास कोई एक्स अमाउंट ऑफ लायबिलिटी है तो अगर आप उसको सेटल करते हो तो कितने पैसे में वो सेटल हो जाएगा आज के डेट पे इज नोन एज फेयर वैल्यू. मीन्स अगर मेरे पास लेट्स से ये एसेट है और आज ही मैं इसको सेल करूं तो बाय व्हाट प्राइस आई गेट इट इज द फेयर वैल्यू. या आज एक लायबिलिटी है, मुझे पे करना है, तो उन्होंने बोला कि इतना पे करो, बात खत्म करो. तो what amount will you pay and settle will be known as a fair value आज के डेट पे. Okay, so here prices to sell an asset or transfer a liability today in the market between the market participants is known as fair value. And in detail आप next chapter में सीखोगे कि fair value कैसे calculate करते हैं. So बच्चा उसके लिए एक standard है IFRS 13 which is the next chapter. Yes. Then we have students वैल्यू इन यूज. यूजुअली हम इसको प्रेजेंट वैल्यू बोल सकते हैं. सो मैं आपको समझाऊंगी कि हाउ टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू. वेट. एंड फाइनली वी हैव करंट कॉस्ट आज के डेट का. सो कॉस्ट ऑफ परचेजिंग, और आज के डेट पे अगर मैं इस चीज को रिप्लेस कर रही हूँ, मतलब ये मेरे पास एक ओल्ड मशीन है, अगर ये ओल्ड मशीन को सेल करके अगर मैं रिप्लेस करके अगर न्यू मशीन लेके आऊं तो बाई व्हाट प्राइस आई हैव टू पे. सो दैट इज यूजुअली नोन एज द current cost. Okay, that is known as the current cost. Students, any doubt, or let me just check a chat once. Let me just check a chat once. I don't think that there is any doubt. Yeah, let me just check it once. I think things are going fine. Yes. Let me just check a chat better. Yeah, I know sometimes like 10 seconds there is a lag, but that should not be a trouble, I think. Okay. Yeah. Okay, I think that's fine. Uh, I'm just checking it, okay? But I think that's all good. I'm not like just, it is somewhere at the side. I have just kept it, okay?
Now we are going to learn about the concept called value in use, that is known as present value in use. Now this is one of the important topic which is going to be taken care in a long run. Now when I speak long run means the whole SBR आपको इसके ही आगे पीछे ही वैल्यू इन यूज आपको मिलता रहेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. तो व्हाट आई विल बी डूइंग इट, ओके लेट्स डू वन थिंग. एक काम करते हैं, हम ना एक एक्सेल ओपन करते हैं, ठीक है. एक एक्सेल ओपन करते हैं. आई थिंक आपको एक एक्सेल विजिबल हो रहा होगा, दिख रहा है एक्सेल विजिबल? यस. चलो ना, बिफोर आई टेक द एक्सेल का पोर्शन, एक काम करती हूँ, मैं एक चीज और आपको शो करती हूँ. देखो, अगर मैंने ऐसा कभी कुछ बोला, फॉर एग्जाम्पल, guys please understand it very nicely. Let's say students, I have purchased a raw material. Students, I have purchased a raw material जिसको मुझे पे करना पड़ेगा at the rate of $500,000. But the thing is, I have to pay $500,000. But when today, but मैंने क्या बोला उनको कि today I don't have money. Please give me some grace days या grace years. मैं उसके बाद पे करूंगी. उन्होंने बोला ठीक है कि आप पे करना 2 years के बाद. तो क्या आपको लगता है कि फर्स्ट ईयर एंड होता है 31 दिसंबर 2026, सेकेंड ईयर एंड हो रहा है ऑन 31 दिसंबर 2027. आपको लगता है गाइस कि वो 2027 में भी मुझे बोलेंगे कि ठीक है चलो मैं 2 साल के बाद जा रही हूँ और मैं उनको 500,000 दे रही हूँ, बोल रही हूँ कि ठीक है ले लो. डू यू थिंक दे आर गोइंग टू टेक दिस मच मनी? अ बिग नो. वो लोग बोलेंगे मैम इसके संग में ना हमें आपको इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे 2 years का. करेक्ट. लेट्स से today's date is say for example first, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टुडे मीन्स आज के डेट पे द डेट वॉज लेट्स से ऑन 1 Jan 2026. तो फर्स्ट ईयर के बाद नहीं बच्चा, आप 2 साल के बाद पे करो तो वो बोलेंगे कि आपको 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा. से फॉर एग्जाम्पल द इंटरेस्ट रेट इज 8% कंपाउंडिंग. तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो स्टूडेंट्स कि 2 साल के बाद व्हाट अमाउंट एम आई सपोज टू पे? यू विल से, यू टेक द कैलकुलेटर्स, यू टेक मैम 5 lakhs into 8%, so 40,000 will be the interest. So in the first year it's going to be 500,000 plus in the first year the interest is going to be 8%, 40,000. So the total amount becomes 5,40,000. On that again 8% interest you have to add it. So plus 8%, oh my god. So it becomes total 583,200. So bacha, after I come after 2 years, I will have to end up paying 583,200. 583,200 I have to pay. So if you're taking 500,000 plus 8% if you're doing it, okay, you will be ending it up paying around 583,200. That means you should not pay 500,000. You have to pay along with the interest. You have to pay along with the interest. Agreed? Yes. You have to pay along with the interest. You have to pay. ये तो हो गया सिंपल. मतलब आज के डेट में बच्चा हम इसको बोलते हैं दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू एंड दिस इज नोन एज एफपी, दैट इज नोन एज द फ्यूचर वैल्यूएशन. करेक्ट. अब यही चीज वाइस वर्सा हो तो कैसे हो सकता है? मतलब आपने कुछ परचेस किया है और आपके क्रेडिटर ने बोला है कि अश्विनी मैम यू पे आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद यू हैव टू पे से फॉर एग्जाम्पल $200,000 means I have to pay after 2 years, not after 1 year, but after 2 years. Means on 31st/12/26 and on 31st/12/27 I have to pay. So this is the amount what I am supposed to pay after 2 years. तो मैंने बोला कि बाबा आई डोंट वांट टू वेट फॉर 2 years, मुझे आज बता दो कि दिस इज द फ्यूचर वैल्यू. प्लीज टेल मी व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, कि मुझे आज के आज पेमेंट करके सारा का सारा कुछ सेटल करना है. तो आज आप बता दो कितना पे करना है. तो वो बोलेंगे ठीक है 2 lakhs पे कर दो. आप लोग बोलोगे नहीं 2 साल पहले पे कर रहे हैं हम. गाइज यू विल से कि मैम वी आर पेइंग लाइक 2 years प्रायर, 1 year and 2 years प्रायर. तो मैम मुझे कुछ तो डिस्काउंट दो. एग्जैक्टली यू विल बी आस्किंग अ डिस्काउंट, राइट? एग्जैक्टली. सो कितना डिस्काउंट चाहिए? सो इन द मार्केट दे विल फाइंड, और वो आपको दे देंगे एग्जाम में, दे विल फाइंड स्टूडेंट्स अ डिस्काउंटिंग फैक्टर. एंड उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर और रेट मिल रहा है से फॉर एग्जाम्पल 10%. तो आपको 2 साल पहले आना है, 1 year प्रायर एंड 2 years प्रायर. So 2 times before they will be discounting it. Means what you have to do,
यू हैव टू पुल बैक 2 lakhs, मतलब आप जस्ट इमेजिन करो कि 2 lakhs आपको मिलने पे करना है आफ्टर 2 years। तो अगर आप उसको पुल करके आज के डेट पे लेके आओ तो 200,000 1 year back you take and 1 more year back you take. So what are you going to do? 200,000 you're going to take like 1.1, you're going to take it 1 year back, and 200,000 you're going to take it like 1.1 square means 2 years back you're going to take. तो आज के डेट में क्या वैल्यूएशन आएगी? So simple, what you're going to do, 200,000 divided it by 1.1 equal to, and you press one more equal to. So आज के डेट में बच्चा इसका प्रेजेंट वैल्यू आपको आ जाएगा $165,289. So what I'll do? Simply I'll take it 2 years back. Simply I'll take it 2 years back. That means अगर आज आप इतना पैसा पे करते हो या अगर 2 years के बाद आप 2 lakhs पे करते हो तो it is going to be same. How? So if you are taking 165,289 plus 10% plus 10% if you do, it's gonna come as 2 lakhs. You can do it, my dear students. You can try this question once. Just try it once. By the time, just give me a second. Yeah, I think now it's fine. Now you guys are understanding it, right? Okay, I'll just wait for you all. Try this once. Okay, just checking the chat. Check the chat, check the chat. Done? Okay, moving in next. Yes. Students, now we can try with one question on it. Yes. Say for example, we get to know that we have to pay, मतलब हमारी responsibility है, suppose we have to pay, let's say dollar 650,000, let's say after 3 years. आज के डेट पे आप मुझे बताओ कि मुझे कितना ही पे करना पड़ेगा, मतलब आई विल से कि अच्छा दिस 650,000, आई थिंक इट्स विजिबल क्लियरली ना. Students, I have to just go on checking it again and again, okay? Yeah. We have to pay 650,000 after 3 years. So what is my responsibility today? So मैं क्या सोचूंगी कि ठीक है 650 I'll pay it after 3 years. So my future value is going to be 650,000. I have to find what is the present value. So present value के लिए आप सबसे पहले बोलोगे कि मैम what is the discounting factor? Agreed. So if they have given me the discounting factor as say for example 12%, तो what will I do guys? What will I do? Simply मैं ये discounting factor को use करके I'll try to find it out. Okay, I'll try to find it out. What am I getting it? So मैं क्या करूँगी, आपको मैं एक लाइन बता देती हूँ. Simply maybe you will understand it over here. See, देखो ये आज की डेट है. Okay, and this is a 3 years. So after 3 years, I have to pay 6,50,000. Okay, yeah, 3 years. So you have to pull back 1 year, you have to pull back 2 years, and you have to pull back 3 years. So for 3 years, I have to discount it. I have to use a discounting factor. So 6,50,000, I'll have to discount it by 1.12. Why 1.12? Guys, 12% means over here I have to take 12%. 12 divided by 100 plus 1. So it's 1.12. I have to pull it back 1 year. More pull it back by 1 year plus 1 year. So divide by 3. So how will I do it? Yeah, raised to power 3. Raised to power 3. So simple. What I'll do? 650,000. I will have to pull it back by 3 years. So I'll take 6,50,000, divided it by 1.12, divided it by 1.12, divided by 1.12. So this will become my present value. I'll have to divide it by 3 years. You can take it in the calculator also. So this will become your present value. Just take it in your calculator. 650 divided it by 1.12 equal to and equal to. Isn't it 462? Yes. Now, I would suggest, yeah, this is your present valuation that you have calculated. Okay. Say for example, it was 8%, then what?
then don't do 1 by 8. Guys, what I have to do is 650,000. Okay, whenever we are calculating it, bacha, okay, if you take 650,000 divided it by, so first of all take it 8%. 8% means 8 divided by 100 plus 1. So it's going to be 1.08. So that also 3 times you have to take. Divide by this 1 time, divide by twice, thrice. Isn't it fetching me this much? You can check it once. So I think I'll get the present value is so much. Simple. Now if I want to check it, okay, is it correct or not? So I have to make one column. Means after 3 years, you should fetch. You should fetch how much? You should fetch no matter what, 650 you should get it, okay? So I'll get the opening present value liability. What is my opening liability? Let's say on the day 1, my present value is this much. On that you will know, na, interest of 8% will be charged. So on that, please add 8%. So this is your total amount, right? Yes, after first year. So it's by the year end, okay? By the year end, you're going to fetch this, okay? By the year end, you're going to fetch this. So like that way, bacha, you'll have to do it for how many years? You'll have to do it for 3 years, okay? So you get to know. Okay, I'll just make it like that way. I want only two zeros, okay? In the second year, closing balance on that interest is to be charged, 8%. So you will be getting the year end balance. Third year also, guys, closing of the second year will become the opening. On that interest of 8% it will be charged, and by the time you should get 650,000 which has been allotted, okay? So isn't it 650,000? Correct? Yes. Please make sure you all complete this question once. I'll be waiting it for you. I shall wait this question. I want you all to do it. This is how it goes. A lot of students know this thing. All done? I'll just wait and just check the chat. Yes. Okay. Can we just proceed it, guys, next? Okay, moving it next. Okay, yeah, let's try with this example here. A company expects a cash inflow of 50,000 in first year. Okay. The company is expecting that the company is going to receive 70,000 in second year. And the company is expecting that they are going to receive 90,000 in third year. So 50, 70 and 90. Let's proceed it right. 50, 70 and 90. Guys, this is a good question. Huh? Try. Understand. So I need to understand. That means the company is saying that
After first year, second year and third year, after first year means in the first year end, the company is going to receive, let's say 50,000. Okay, this is the cash inflow. The company is going to receive 50,000, second year 70,000, and third year they're going to receive 90,000. So accordingly, my mind says that the company is totally going to receive around 2 lakhs 10,000. That's correct? Yeah. But do you think that is correct? Can I say that the company is going to receive 210? Guys, it is wrong. Why? Because after 1 year, the company is going to receive 50. Getting it? The company is going to receive 50,000 after 1 year. The company is going to receive 70,000 after 2 years. The company is going to receive 90,000 after 3 years. So if I want to know what is the present value 0 today, you have to take it back, pull it back by 1 year. You have to pull it back by 2 years. You have to pull this back by 3 years. Yes. So what you have to do, guys, you have to pull it back, right? Yeah. So this you have to pull it back. Let's say 1 year you have to pull it back. You have to get the present value. Here you have to pull it back. Let's say 2 years. 1 year and 2 years. Here you have to pull it back by 3 years. Correct? Yeah. Here, and here. Yeah. Only then you will be getting the present value. Okay. How will you pull it back? So here, have they given any discounting factor? So obviously they would have given. Can you see? Discounting rate is 10% per annum. So I'll write here. Discounting factor is given to me as 10% per annum. So if you pull it back by 1 year, so simply what you will do is 10 divided it by 100 plus 1, right? Yeah. So 1.1. So you will divide it by 1.1 to get the amount. 70,000 you pull it back by 2 years means 1.1 square, right? Yes. So what you were doing it for 2 years, right? So don't you think you were doing this divided it by this one time and two times, correct? Yes. And this you were dividing it by 3 years. So what I used to do now, I used to do like this 1.1 into 1.1. So what I used to do is simple, I used to do this, correct? Here 3 times into 1.1. You take the same thing, it is going to be the same. Or I can do this much. Divided it by 1 time, divided it by 2 times, divided it by 3 times. Okay. So better, my present value is going to be this much. 170,0924. Isn't it something around like this? So 50,000 first of all. 1 time you have to pull it back. 2 times you have to pull it back. And 3 times you have to pull it back. So accordingly, my cash flow was 210. But when you take the present value, isn't it 170,903? Okay, 913, or it's because of the pointers. Okay, because of the pointers, there is a difference. And because of the pointers, the things will work fine. So, better this is the present value. Present value is equal to cash flows you have to take divided it by 1 by r into number. Okay. So if you're feeling the way I did it is more comfortable, you can please proceed it that way. So 50,000 1 divided by 1. So if you can do 50,000 divided by 1.1 one time. So it's going to fetch me around here 45454. Okay. Here if it is 70,000 divided by 1.1 equals to, it's going to fetch me around 578, 551. Okay. So 90,000 divided by 1.1, 1, 2 and 3 times. So it's going to fetch me around 67,618. So if I take the summation, it's fetching me around 170,923 only, guys. Yeah, so it should be 23, guys. It should be 23. Yes. If you want, I'll just change it. Okay, if you want, I'll just change the figure. It should be 23, which is making it correct. Yes. So you can see here 23 and 24. Yeah. So this is going to be the present value. Okay, this is going to be the present value. Please complete this question. Yeah, please complete this question. This is the proper example which the institute also takes regarding the present value.
Moving it next. Yes. Okay. Now, after doing the concept of, measurement, we have presentation disclosure criteria, like PD. Okay. So we have learned R, M, P, D. So what is this P? Presentation. So basically, presentation will help us. Like if I'm having any kind of profit work, like am I supposed to present it in the notes to accounts, or am I supposed to give extra disclosures for the same? And how material it is means how important it is, how important or how impactful it is. Like for example, one mistake is not that important, but if it is getting it recurringly बहुत ज़्यादा, तो वो together बहुत ज़्यादा important हो जाता है, right? So based on that, let's understand first. So based on the classification, offset and materiality, classification example, for example, a company has इतना बड़ा लोन of which so much is payable within 12 months. So आपको पता है बच्चा, अगर इतना बड़ा लोन अमाउंट दिख रहा है तो ये मेरा बन जाएगा क्या, लेट्स से इट्स 1 million. ओके, तो उसमें से मैं क्या करूंगी कि 1 million का मैं लिखूंगी फॉर एग्जाम्पल. हियर आई थिंक वन डिजिट 10 seems to be extra. No, it's correct. Yeah. Okay. Okay, then it's fine. Okay, then it's fine. Okay, then it's fine. Okay. So, guys, it's 10 millions. A company has a 10 millions ka loan, out of which 1 million he is going to pay it in the next year. So that means 1 million what he is going to pay in the next year itself within 1 year, it's known as non-current, it's known as current liabilities, right? But out of 10 millions, if he is going to pay 1 million next year, so that is current liability. So the difference of 9 millions will become the non-current liability. So this is what the presentation goes. Okay, how you're going to present it in the balance sheet or financial position. This is how you have occurred it, right? Yes. Second is, guys, offsetting. When I say offsetting, generally offsetting मतलब asset अगर आपका इतना है, liability इतना है, तो you cannot just make a settlement. Okay, yeah, so that net off you cannot do. Okay, for example, the company is having, let's say, 30 millions cash. Okay, and 1 million का overdraft है, low and high. तो ऐसे नहीं करोगे कि भाई लो इंटरेस्ट है तो मतलब 3 millions और 1 millions को नेट ऑफ करके 2 millions बता देंगे. नो गाइस, करेक्ट थिंग इज 3 millions आपको एसेट में शो करना पड़ेगा और ओवरड्राफ्ट का जो लाइबिलिटी है वो आपको सेपरेटली लाइबिलिटी में शो करना पड़ेगा. तो हैव टू मेक अ सेपरेटली. मतलब आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है इनकम 3 million का, और अगर आपको इंटरेस्ट पे करना है 1 million का, तो इट्स इंपॉर्टेंट आप एसेट को एसेट में शो करो, आप लाइबिलिटी को लाइबिलिटी में शो करो. Agreed? Yes. So this is what you have to do it. Okay. This is what you all have to do it. I'm just taking this fourth point ऊपर. Yeah, so that you can see it आराम से. Guys, now materiality means what, guys? We have to see कि how important it is. Like identifying the potential important information क्या है जो अगर गलत हो गया तो there is a trouble. Assess how significant it is. मतलब अगर एक बार मिस्टेक हुआ है तो मान सकते हैं, पर वही चीज अगर उस चीज को कितनी बार रिपीट हुआ दैट मैटर्स इन प्रेजेंट मटेरियल आइटम्स. ओके है कि नहीं? Review the complete set and then capture okay, what material matter it is. Okay, that's all. Just take a note once. So this is based on the classification, offsetting and materiality. Classification, the first process is classification, offsetting and materiality. तो नीचे उन्होंने लिखा है कि classification, offsetting allowed नहीं होती है, और materiality भी ना judgment के basis पे होता है कि आपको कितने हद तक वो चीज इंपॉर्टेंट लगती है. अब लेट्स से मेरे कंपनी में 100,000 रुपीज की, फॉर एग्जांपल आई एम नॉट टॉलिंग डॉलर्स, की चोरी हो गई, तो मेरे को ये शायद मटेरियल लग सकता है, बट रिलायंस इंडस्ट्री में अगर 1 लाख का फ्रॉड हुआ है या कुछ लॉसेस हुआ है तो वो शायद उनको इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा. सो मटीरियलिटी इज डिफरेंट एंड based on the judgmental part for every different entity. Okay, true. I'll wait for a minute, read it once. Okay, done. Sure. Moving it next, guys. Capital and capital maintenance. What must be preserved before profits can be given? मतलब देखो, कभी कभी क्या होता है, तो कंपनी के पास अच्छा खासा प्रॉफिट तो हो जाता है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि जो प्रॉफिट है सारा का सारा आप अपने शेयर होल्डर्स को दे दो, या मतलब प्रॉफिट्स आप डिस्ट्रीब्यूट करो बिफोर यू आर पुटिंग इट इनटू एनीथिंग. आपको पता है ना कि आपको थोड़े से प्रॉफिट्स को प्रिजर्व करना पड़ेगा, यस, रिटेन अर्निंग्स के मैटर में भी प्रिजर्व करना पड़ेगा, और आपको प्रॉफिट्स में प्रिजर्व भी करने पड़ेंगे इन द नेम ऑफ द कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस. अब फर्स्ट चीज
थिंग्स है यहाँ पे, अगर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ. सो कैपिटल मेंटेनेंस इज एक्चुअली हैविंग थ्री अप्रोचेस. फाइनेंशियल कैपिटल, जिसमें नॉमिनल है, फाइनेंशियल कैपिटल विच इज ऑन द कॉन्स्टेंट purchasing power, and physical capital maintenance. So यहाँ पे the main principle is profit is only recognized after capital has been maintained. मतलब profit आपको तभी मिलेगा once आपने इस चीज को separately show कर दिया है. Preserve what you had first, then count the extra profit. पहले साइड पे निकाल लो जितना निकालना है, उसके बाद जो बचा वो बनता है आपका प्रॉफिट राइट. तो फर्स्ट लेट्स से अगर कोई कंपनी में कोई इन्फ्लेशन नहीं है, नो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट विच इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो क्या मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कंपनी में ना ओपनिंग इक्विटी है 100,000 की, 1 मिलियन की, क्लोजिंग इक्विटी है 1.2 मिलियन की. मतलब मुझे लगता है कि शायद ओपनिंग में मेरे पास 1 मिलियन था और 1.2 हो गया है, मतलब ये साल में मैंने कुछ प्रॉफिट कमाया होगा 200,000 तक का राइट. तो यस, उसको हम बेसिकली बोलते हैं कि भाई ये मेरा प्रॉफिट है. दैट मीन्स व्हाट, सिंपल, आई टेक क्लोजिंग इक्विटी बच्चा, आई टेक क्लोजिंग इक्विटी माइनस ओपनिंग इक्विटी, मेरा प्रॉफिट बन जाएगा. मीन्स मैं ऐसा सोचती हूँ कैपिटल मेंटेनेंस में, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में, कि मेरे पास प्रॉफिट्स कितना है. तो मैं देखूंगी जब कैलकुलेट करने की बात आती है तो मैं अपने इक्विटीज को ओपन करूंगी एंड आई चेक इट आउट कि ओपनिंग मेरी कितनी थी, क्लोजिंग मेरी कितनी है इक्विटी की, जो डिफरेंस आ रहा है वो मेरा प्रॉफिट बन जाएगा. बट अगर मार्केट में इन्फ्लेशन हो रहा है तो मैटर अलग हो सकता है. सेकेंड पॉइंट में है जब इन्फ्लेशन है मैटर में तो मैं कैसे सोचूं. तो वहां पे भी एक क्वेश्चन है कि ओपनिंग आपकी इक्विटी थी लेट्स से 1 मिलियन, ईयर एंड पे अगर आप आए तो 1.2 मिलियन हो गया, तो आप बोलोगे मैम प्रॉफिट तो 2 लाख का है. बट नहीं स्टूडेंट्स, वहां पे उन्होंने बोला कि सारी चीजों के दाम बढ़ गए, इन्फ्लेशन हो गया 10% से. मतलब जो ओपनिंग आपको 1 मिलियन लग रहा था अब वो 1 मिलियन नहीं है, उस पर 10% इन्फ्लेशन हो चुका है. तो मैं क्या करूंगी, 1 मिलियन पे 10% ऐड कर दूंगी. मतलब मेरे हिसाब से ओपनिंग है मेरा 1.1 मिलियन और अब हो गया क्लोजिंग 1.2, तो जो उनका डिफरेंस है खाली वही मेरा रियल प्रॉफिट होगा. क्योंकि जो एक्स्ट्रा बड़ा है ना, वो क्यों बड़ा है बच्चों, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द रियल प्रॉफिट दैट यू हैव अर्नड. गाइज अंडरस्टैंडिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यहाँ पे. यस, यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है ना 1 मिलियन, मतलब ये किसकी वजह से हुआ, इन्फ्लेशन की वजह से. मतलब ओपनिंग थी आपकी इक्विटी लेट्स से 1 मिलियन पे, ईयर एंड पे इक्विटी हो चुकी है 1.2 मिलियन. आई अग्री 0.2 से बड़ा है, बट जो प्रॉफिट हुआ है वो किस कारण वर्ष हुआ है, तो इस पे 10% आपका इन्फ्लेशन बढ़ चुका, तो ये 1.1 है. अब इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो आई विल गेट टू नो द रियल स्टफ. ओके, यस, I hope it's very clear. Now, lastly, physical capital maintenance. A physical capital maintenance मतलब profit only arises when the entity can produce more at the year end. मतलब मुझे ये देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट मतलब कंपनी कितना कमा सकती है. आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल हियर ओनली सो दैट यू नो कि आपको वो, मुझे पता है कि वो दिखने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है. सो आई डू वन थिंग, आई जस्ट ट्राई टेकिंग इट हियर सो दैट आई थिंक यू कैन जस्ट सी राइट. या yes, I'll just take it here, the example fine. Okay, I don't think that there is any trouble now. Okay, so यहाँ पे guys profit only arises when the company can produce more. For example, एक मशीन है okay, जो कि 5 लाख डॉलर कमा के दे रहा था. अब वही मशीन को आप यूज करके अगर 6 लाख कमा के दे रहे हो तो आप बोलोगे मैम वो जो मशीन है ना उसकी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एंड अर्न ऑफ 1 लाख से बढ़ चुकी है. अब ये जो होता है वो एक्चुअली प्रॉफिट्स नहीं होता है, वो होता है कैपिटल मेंटेनेंस चार्ज. सो दैट्स व्हाट दे आर टेलिंग. फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस मींस प्रॉफिट ओनली अराइजेस व्हेन द एंटिटी कैन प्रोड्यूस मोर एट द ईयर एंड. ओके, इंक्रीज इन रिप्लेसमेंट कॉस्ट उसको प्रॉफिट्स हम नहीं बोलते. सो प्लीज स्टूडेंट्स जस्ट सी दिस बिकॉज यही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं कैपिटल मेंटेनेंस में. सो व्हेन इट कम्स टू कैपिटल मेंटेनेंस बचा देयर आर थ्री टाइप्स जो आप एडजस्ट करोगे. What must be preserved before profit is recognized. मतलब प्रॉफिट आप जब रिकग्नाइज करते हो तो कैसे माना जाता है कि कितना प्रॉफिट है. अगर मार्केट में कुछ इन्फ्लेशन नहीं है और सच में द फर्स्ट केस हुआ तो पूरा का पूरा प्रॉफिट है. बट अगर इन्फ्लेशन हुआ तो आपको इन्फ्लेशन एडजस्ट करके फिर प्रॉफिट देखना पड़ेगा. एंड फिजिकल मेंटेनेंस में आई हैव टू सी कि हाउ मच गुड दे हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस. यस, आई होप दैट्स क्लियर. आई जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं एक बार चेक भी कर देती हूँ चैट्स मंस. यस, लेट मी चेक द चैट्स. या hey,
knowing it is. Okay, now we have the qualitative characteristics. अभी स्टूडेंट्स whenever the financial statements are prepared, okay, financial statements आप जब prepare करते हो financial statements, आप जो भी figures उस पे mention करते हो, whatever you are writing it, okay, whatever figures or whatever amount you are writing it, guys, they should have certain characteristics or there should be certain, I can say basically quality into it. Means the amount should be, you know, relevant. कोई भी गलत गलत इन्फॉर्मेशन आप मत लिखो, राइट? वो ऐसा अमाउंट लिखो बच्चा जिसपे लोग फेथ कर सके. इट शुड हैव द फेथफुल रिप्रेजेंटेशन. आप जब फाइनेंशियल्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आप मेक श्योर करो बच्चों, आप मेक श्योर करो कि जो फाइनेंशियल्स है वो लोगों को समझ आ रहे हैं. इज इट अंडरस्टैंडेबल? यस. उसके बाद आप सोचो कि जो आपने फिगर्स लिखे क्या वो टाइमली बेसिस है, टाइमलीनेस है उसमें कि आज की डेट की है, अपडेटेड है कि नहीं है. अब जो अपने फिगर्स लिखे वो कुछ भी है कि वो वेरीफाइबल है. वेरीफाइबल मींस क्या आप वाउच वेरीफाई कर सकते हो, आपके पास उसके एविडेंसेस है कि नहीं. तो आपको वो सारी क्वालिटी भी उनमें मेंटेन करनी पड़ेगी कि वो अंडरस्टैंडेबल है, वो टाइमलीनेस है, वो वेरीफाइबल है कि नहीं है क्या वो. और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप प्रिपेयर करते हो ना बच्चों, तो एक और चीज करना पड़ेगा कि जब आप फाइनेंशियल्स बनाते हो ना, यू डोंट मेक इट फॉर 1 ईयर, यू ऑलवेज ट्राई मेकिंग इट फॉर लाइक यू नो कंपेरेबल, कि क्या वो कंपेरेबल है कि नहीं. सो दिस वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको शायद ये क्वेश्चन आ सकता है इन योर सेक्शन नंबर बी, सेक्शन बी के लास्ट क्वेश्चन में. तो व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. सो द मेन थिंग इज कि व्हेनेवर आई एम प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल्स, मेरे फाइनेंशियल्स 2 वर्ड्स पे होने चाहिए, या तो वो तो रेलेवेंट होने चाहिए और फेथफुल रिप्रेजेंट होना चाहिए. और फर्दर एनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ये 4 हैं उनके. सो सी हियर. सो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम जब बात करते हैं, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल्स must both present what it should be relevant बच्चा and it should be faithful representation. जब मैं बात करती हूँ बच्चों relevant की, okay, when I'm speaking about the relevant information, guys, what do you mean by the word called relevant information? Okay, just give me a moment. Yes, substance ना prudence को मैं ना यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों. आप I think ये फिर visible हो नहीं पाता है ये prudence. Okay, whatever it is, I'll just try making it shorter. ओके ओके, आई डोंट नो वो आपको विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट होप के हो रहा होगा. लेट्स सी. ओके यस, आई विल टेक इट लेटर. चलो गाइस, व्हेन आई से रेलेवेंस, रेलेवेंस मींस व्हाट बच्चा, कि जो फाइनेंशियल्स आप प्रिपेयर करो आप मेक श्योर करो कि इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट, काम की है और वो इंपॉर्टेंट है यूजर्स को डिसीजन लेने के लिए, जो कि है प्रेडिक्टिव. मीन्स आप फ्यूचर को परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट कर सको. फॉर एग्जाम्पल करंट प्रॉफिटेबिलिटी आप चेक करोगे और फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हो. या इट शुड बी कन्फर्मेटरी वैल्यू. कन्फर्मेटरी वैल्यू मीन्स इट हेल्प्स द यूजर्स टू इवेल्युएट के पास्ट एक्सपेक्टेशंस क्या थी, क्या स्ट्रेटजीज वगैरह बनाई थी, वो सब. एंड अगर जरूरी है तो प्लीज मटेरियलिटी पे भी ध्यान दो कि आपसे कुछ छूटा ना हो, आपने कुछ ओमिट ना किया हो. क्योंकि अगर आपसे कुछ छूट गया, आपने कुछ ओमिट कर दिया तो ट्रस्ट मी इट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन, राइट? So that 3 words are very important when it comes to relevance. When it comes to relevance, yes, it should be first of all for relevant information, guys. They're telling that बच्चा आप जब predict करते हो, it should be predictive, means the financials of present करते हो तो ऐसा होना चाहिए कि इंसान ना वो देख के समझ सके कि अच्छा फ्यूचर में ये चीज होने वाला है. मतलब आप पूरे इन्फॉर्मेशन उनको दे दो. Confirmatory value which helps the users to evaluate the past expectations. एंड मटेरियलिटी मतलब आपको चेक करना पड़ेगा कि कोई ओमिट या मिसस्टेटमेंट तो कुछ हुआ नहीं है. बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू ऑल्सो गो अहेड विद द फेथफुल रिप्रेजेंटेशन. जब मैं फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की बात करती हूँ गाइस, जब मैं फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की बात करती हूँ, मेक श्योर करो कि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रही हो उस पे लोग ट्रस्ट कर सके. इट नीड्स टू बी कंप्लीट. ऐसा ना हो कि कुछ चीजें आधी अधूरी है. इट शुड बी फ्री. ऐसा बायस नहीं होना चाहिए. इट शुड बी फ्री, इट शुड बी कंप्लीट, इट शुड बी न्यूट्रल, इट शुड बी नॉट बायस्ड, free from the biasness, it should be free from material error. गलत information नहीं. Make sure it is accurate and it is based on prudence. Means आपको overstate नहीं करने हैं assets को, अच्छे से उसको consider करना है. So it needs to be faithful representation and not just this 4 points guys. आपको इसमें enhancing characteristics भी होने चाहिए जैसे कि comparability, verifiability, timeliness and understandability.
गाइस 4 चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज गोइंग टू एनहांस द कैरेक्टरिस्टिक्स गाइस, विच इज गोइंग टू एनहांस द कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, द थिंग्स विच इज गोइंग टू एनहांस द कैरेक्टरिस्टिक्स. सो व्हाट आर दोस थिंग्स विच आर गोइंग टू एनहांस द कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चा? तो मैं एक बार पढ़ लेती हूँ यहाँ पे. मैंने आपको 4 चीज बोली बच्चा. इट नीड्स टू बी व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मेक श्योर इट इज कंपेरेबल. मतलब आप करंट ईयर की फिगर्स भी दो, प्रीवियस ईयर की फिगर्स भी दो. करेक्ट. सो जिससे कि इंडिविजुअल पीपल इजीली उस चीज को कंपेयर कर सके, या तो इंट्रा इंट्रा कंपनी में कंपेयर कर सके, या मेरी कंपनी को किसी और कंपनी से भी कंपेयर कर सके, इंट्रा और इंटर. सो इट अलाउज द कंपनी फॉर हैविंग क्रॉस एनालिसिस ओवर द टाइम पीरियड और बिटवीन द डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज. राइट. इट रिक्वायर्स कि भाई मतलब जो मैंने लेट्स से इन्वेंट्रीज रिकॉर्ड किए, तो करंट ईयर पे भी मैंने फीफो बेसिस यूज किया था, प्रीवियस ईयर में भी मैंने फीफो बेसिस ही यूज किया था. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डेप्रिशिएशन यूज किया है, तो मैंने करंट ईयर में भी एसएलएम बेसिस यूज किया है, प्रीवियस ईयर में भी. मतलब जो पॉलिसीज आपने यूज की होंगी ना बच्चा, वो भी क्या होना चाहिए, इट शुड बी कंसिस्टेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर कुछ और करा और करंट ईयर में कुछ और किया, तो वो ट्रबल हो जाएगा. राइट. यस. सो दिस इज वाई एंटिटीज कैन नॉट स्विच द पॉलिसीज. उनके खुद की मर्जी से, अरे फीफो में अच्छा आ रहा है चलो वो करते हैं, अरे इस साल लीफो में अच्छा आ रहा है वो करते हैं. नहीं 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 नहीं. इट नीड्स टू बी कंपेरेबल सो दैट इट इज इजीली चेक्ड. इट शुड बी वेरीफाइबल. मतलब आप जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो ना, मेक श्योर करो कि आप उसको वेरीफाई कर सको, आप उसको वाउच कर सको, आपके पास उसके लिए कुछ एविडेंस हो. अगर आपने कुछ जजमेंट भी बनाए हो, तो उसके बेसिस कुछ हो. सो डिफरेंट नॉलेजेबल ऑब्जर्वर्स हैव रीच्ड अ ब्रॉड कंक्लूजन्स कैन डायरेक्टली शो. ठीक है ठीक है. टाइमलीनेस मीन्स आप मेक श्योर करो कि आप ना एक्यूरेटली बता रहे हो, पुराना या नया डेटा नहीं दे रहे हो. और अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स मेक श्योर करो कि आप कॉम्प्लेक्स वर्ड्स अपने नोट्स में ना डालो, और मेक श्योर करो कि आप इतने बड़े बड़े नोट्स में मत दो. काम की चीजें दो सो दैट द यूजर्स विल हैव टू ड्रॉ एन अटेंशन ऑन द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स. Make sure you're not making it so much elaborative that the users are getting, sometimes misdirected, or in the wrong direction they'll move it around. So make sure the things are taken care of. Please read it once. So guys, these things are important. पहले तो the main characteristics are it should be relevant and faithful. Under that, it should be understandability, timely, verifiable, and it should be comparable. Yeah, please एक बार read कर लो. So these are the normal characteristics, and there were some further extra additional characteristics जो भी आपको follow करना पड़े. Yes. Yes. Please read it here. Okay, moving it next. Okay, guys. Yeah. Like last, and guys, yeah, we are done then. Key formulas and exams things. So quick revision, I have just taken it. So you know that the present value is equal to cash flow divided by 1 by R, the whole power.
Balance sheet, we know if we want to take the assets, asset is equal to liabilities and equities. Equity is equal to assets minus liabilities. Financial capital means we know closing equity minus opening equity. But if we are having a physical stuff, physical capital maintenance, I have to see what all increased productivity it has been taken care, right? Yeah. So just take key formulas that we have learned it in this chapter. Along with that, yeah, let's move it further. Guys, now what have we taken? Yeah. So they're telling that let's not make any mistake in calculating the elements. Then conceptual framework has no authority other than this. So IFRS is like always prevails. Okay, prudence does not mean just undervaluing the assets and all. No, guys. Make sure you are showing the faithful representation. Going concern is not automatically. We have to actually make sure that actually the company is going concern. So this is what it is. Okay, my dear students. So you can just read it once. I have just taken it the key away also. So if you want, just take it once. And yeah, my dear students, with these, we have also completed the first and the second chapter also, which was more of, I know, theory. So the things were taking up a little bit time for us to learn, but I think that was easy. Yeah. So what are things we have learned? It first of all, we have learned the introduction to the chapter. Then we have learned the objectivity of financial reporting, elements, recognition, RMPD criteria, capital maintenance, and quality. Guys, that's all. So yes, my dear students, I hope that you have understood it on a greater pace. So students, if you want to have, more hands-on, you can eventually open the ACCA study hub, which I'll just open it for sure for you all. Yeah, I'll just open it once. And you can just turn around the pages and just get a confirmation that yes, we have went through this. And for more practice, you can take it. So students, we have completed first chapter, we have completed third chapter, conceptual framework. I'm not taking second chapter from you. You can see that 8 chapters. The objective of general purpose financial qualitative characteristics, financial statements, elements, and so on, right? Purpose. Then financial assets, going concern assumption, elements, assets, liabilities, economic control, definition, liabilities, past events. Then RMPD criteria. We have taken some examples also. Here also historical current cost, selection. Then guys, presentation and disclosure. Then fundamental, that is relevant and faithfulness. And enhancing characteristics, comparability, verifiability, timeliness, and understandability. So about that they have explained. Okay, that's all. Yeah. Okay, now this is something off balance sheet which I am not taking it ISB. For that I have to take it in the detail, like what it all it is. Now students, in the next chapter, we'll start learning from IFRS 13. Okay, IFRS 13, we will be taking it later. So I think, yeah, till now, I don't think that there is any difficulty into it. Yeah. Was it fine? Yes. Was it fine? The ethics class 2, it is written, though it is written ethics class 2, but yeah, we have learned the second chapter. Also, we have completed it. I don't think that there is any doubt into it. So students, will just do one thing. We'll just take like 5 minutes break. Okay, we'll just take 5 minutes break and we'll be back with the third chapter. Guys, we'll be starting it with our third chapter. Chapter number 3, which is going to be IFRS 13 only. So yeah, let's meet it back after 5 minutes. Thank you so much. Let's meet it back after 5 minutes.
Okay, my dear students, yeah, let's proceed it up next. Yeah, I think everyone is back. Yeah, we just took a small break. Now we can proceed it with our next chapter, chapter number 3. Let me just take a moment and open it. I think now it is visible. Yes. Is it visible, girls and boys? Yes. Yeah, so we are starting with our chapter number 3, which is going to be IFRS 13. The very first standard that we are going to learn, my dear students, the very first standard, the very first standard. Yeah, the very first standard that we are going to learn, IFRS 13. I think it is visible, right? Yeah. Students. So before I take any standard, yeah, before I take any standard, why am I taking IFRS 13 directly, not 1, 2, 3, 4, nothing? Because guys, IFRS 13 is actually a base standard, which is known as guys fair value measurement or fair value standard, fair value measurement. Now, if you know that, today you all know that students, whenever we are calculating RMPD criteria, right? Recognition measurement. So in the measurement criteria, bacha, in the measurement criteria, we have to measure situations on the day one, and also we have to measure it, guys, on the subsequent date, right? Yes. Day one when we purchase, usually, let's take for example, first 2026. And basically at the year end also, bacha, I have to measure it, right? Say for example, if I have purchased a land on 1st Jan 2026 at the rate of dollar 200,000. So it's my responsibility at the year end to present a true and fair view, right? True and fair view. So if I want to present a true and fair view, bacha, I need to know na, at the year end what will be the actual valuation of that land. Okay, let's say that land, okay, that land you have purchased at 200,000, but today at the year end, say for example, it has increased to 250,000. So now to show in true and fair view, I have to record it at this value, and this value is nothing other than known as bacha fair value. So at any point of time to learn any standard, we need to understand the basic meaning of fair value, right? So this chapter is this standard is very important. So it speaks about fair value measurement, how to measure it, how to record it in your books, right? Fair value measurement. So before I explain you the meaning of fair value, what is actually the importance of this standard? As I told you, when I speak about chapter number 3, that is IFRS 13, fair value measurement, it will help us determine, like, the definition, what are the valuation approach, how about this, what is the market stuff, the hierarchy and so on. So how, like, who will determine, how to determine, when to determine the fair value, and what are the approaches in which you will be able to determine the fair value for actually showing a true and fair view. Correct? Yeah. So students, IFRS 13 is actually a base, it's actually a base standard. Yeah, base standard. If you see the pages and the topic, it is actually small. It is actually merged with conceptual framework only in the institute's material. But I would want to take it separately because this is actually important here, IFRS 13. So let's take it fair value measurement, okay? So without any delay, let's start. What are we going to learn in this chapter? So we are going to learn basically IFRS 13, definition of what do you mean by fair value and exit price, valuation approach, market value or market based approach, method, measurement, principal measurement and most advantageous market, hierarchy, and basically the disclosures. So if you see here and some questions on solved examples and formulas. So this standard is actually small, yeah, and the standard is actually a very common standard. So it is like, every now and then you all have to show IFRS 13. Means you take any standard, they will use the word. At the year end, at the subsequent recognition, you have to measure the fair value. So what and how to determine the fair value? By using this standard. Let's say if it is PPE, property, plant and equipment, at the year end, you will have to see, let's say what is the fair value. So how to determine the fair value? You have to use this standard. So even in IS 16 PPE, let's say IS 40, investment property, you have to measure what? You have to measure the fair value. So how to determine the fair value? As per IFRS 13. So understood? To learn all other standards, IFRS 13 becomes the base because it shows us
like how to determine the fair value and how to go ahead with the fair value. So students, let's start with the basic meaning of IFRS 13. So this is one of the unified framework for measuring the fair value across all the IFRS standards. That's what I'm trying to say, guys. This is the common standard to be actually used before you find it out any other standards fair value. Okay. Cool. Yeah, let's proceed it first. So when I say unified one, okay. So what does actually, why and what does IFRS 13 does? So beta, it is a before IFRS 13, the fair value guidance was being scattered across many standards. I'm telling you now, like IAS 16 used to say something else, IAS 40 used to say something else, IAS 36, 38, this, that. Oh my god. But when they developed IFRS, I told you one thing, if you remember. Earlier there were only IAS. Then the change required, right? And then they came ahead with a new nomenclature series of IFRS, and this is the newer one of IFRS 13. But earlier IAS, it was a troublesome situation कि भाई आपको रिकॉर्ड कैसे करना है फेयर वैल्यू, राइट? तो वो चीज को कंफ्यूजन हटाने के लिए व्हाट दे ट्राइड विद IFRS 13 कि भाई एक सेपरेट स्टैंडर्ड ही उन्होंने बना दिया कि इफ यू वांट टू लाइक लर्न कि फेयर वैल्यू आप कैसे डिटरमाइन करोगे, तो IFRS 13 खोलने का, IFRS 13 पढ़ने का, फेयर वैल्यू फाइंड करने का, एंड अप्लाई दैट कंसेप्ट विद अदर स्टैंडर्ड्स. पहले नहीं होता था, ये अब आया है. सो जब पहले सिचुएशन बहुत स्कैटर्ड थी ना स्टूडेंट्स, तो देयर वर मेनी डिफरेंट पीपल, डिफरेंट illustrations and instructions, so trouble था. But once IFRS 13 came, it is created as one single comprehensive framework to make it easy how and not. How, not when. IFRS 13 tells us how to measure the fair value. It does not tells you when to use it. When to use it आपको दूसरे स्टैंडर्ड्स बोलेंगे, बस क्या बताते हैं कैसे करना है. जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों, IAS 16 जैसे कि है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आपको ईयर एंड पे लेट्स से रीवैल्यूएशन पे वैल्यू करनी है, तो रीवैल्यूएशन में आपको फेयर वैल्यू ढूंढना पड़ेगा. तो फेयर वैल्यू आप IFRS 13 के हिसाब से फाइंड करोगे. अब IFRS 3 रिक्वायर्स कि आपको फेयर वैल्यू एक्विजिशन डेट पे फाइंड करनी है. सो ये दूसरा स्टैंडर्ड है. IFRS 3 मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन में अगर आपको फेयर वैल्यू फाइंड करनी होती है बच्चों, तो जब आप फाइनल वैल्यू फाइंड करोगे तो वो फाइंड करने के लिए भी हाउ करने के लिए आपको IFRS 13 का हेल्प लेना पड़ेगा. अंडरस्टूड दिस? यू डोंट हैव टू लर्न इट मच, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, थोड़ा बेसिक ओवरव्यू देने के लिए. सो स्कोप इट अप्लाइज ब्रॉडली टू ऑल द स्टैंडर्ड्स एज आई टोल्ड यू. एक्सक्लूजन सिर्फ 2-3 स्टैंडर्ड्स है जिसपे ये नहीं लगता है, जैसे कि शेयर बेस्ड पेमेंट्स एंड लीज ट्रांजैक्शंस. ठीक है, फॉरगेट अबाउट इट. यूनिट ऑफ द अकाउंट IFRS 13 मेजर्स, बट इट डज नॉट डिटरमाइन कब कर रहा है, बट इट्स लाइक ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि आपको इस तरीके से इसको वेरी मेजर करना है. Just read it once, IFRS 13. What IFRS 13 does. Simple, Baba. Simple. It does not have much of the concepts to stress about here. Chalo guys, moving it things. Now let's understand guys, what is the definition of fair value? Students, when it speaks to definition of fair value, okay, it says that if you are having let's say this machinery, okay, this machinery आपने purchase की है, say for example today's value is let's say 650,000, okay, 6,50,000. Today, if you sell it in the market and अगर आपको पैसा मिल रहा है 7 lakhs,
तो इस मशीन की आज की डेट की फेयर वैल्यू होती है 7 लाख। बट ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी, मतलब मुझे पैसों की कमी हो गई, हाय तो मुझे बेचना पड़ रहा है। नो 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 नो। इन द नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स अगर आप सेल करते हो तो इतना पैसा मिल रहा है। तो जब हम सेल करते हैं तो ये प्राइस को हम लोग बोलते हैं गाइस एग्जिट प्राइस, मतलब निकालने का प्राइस, एग्जिट प्राइस। तो आज के डेट पे एग्जिट प्राइस पे अगर आप कोई एसेट बेच देते हो बिटवीन द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, नॉलेजेबल सेलर नॉलेजेबल बायर में, तो क्या प्राइस पे इट इज गोइंग टू बी सोल्ड एन एसेट, इट इज नोन एज अ फेयर वैल्यू। लाइकवाइज एक और एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल आज आपके पास एक क्रेडिटर्स को पे करने का एक लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स की मेरी लाइबिलिटी आ रही है लेट्स से $20,000, और मेरे बंदों ने, मेरे क्रेडिटर ने क्या बोला कि एक काम करो अश्विनी मैम, आप ना उसको आज ही अगर पे कर दो, पे कर देते करते हैं, लाइक टुडे ओनली इफ आई एम ट्राइंग टू सेटल इट ऑफ, एंड अगर मैंने आज उसको डिस्काउंट में अगर 18,000 में पे करा ना, तो आज की डेट पे इस फेयर वैल्यू की लाइबिलिटी हो रही है, लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू है 18,000। दैट मीन्स फेयर वैल्यू का मतलब होता है अगर आपके पास अगर एसेट है या अगर आपके पास लाइबिलिटी है, तो टुडे if I am selling the asset or if I am settling the liability at the measurement date, आज के डेट पे measurement date between the intelligent market participants, तो किस वैल्यू पे आज जाएगा बच्चा, उसको बोलेंगे हम लोग फेयर वैल्यू। एंड बोथ द पार्टीज नीड्स टू बी नॉलेजेबल। एसेट्स को अगर मैं सेल करती हूँ तो किस पे कर रही हूँ, लाइबिलिटीज को मैं सेटल कर रही हूँ तो किस पे कर रही हूँ, बिटवीन द मेजरमेंट डेट एंड मेजरमेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स आज, तो उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू। से सी द डेफिनेशन, द प्राइस दैट आई विल रिसीव इफ आई सेल द एसेट, द प्राइस आई विल पे टू ट्रांसफर द लाइबिलिटीज बिटवीन द मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट अ मेजरमेंट डेट, इट इज नोन एज बच्चा फेयर वैल्यू का एग्जैक्ट डेफिनेशन यही आता है, जिसको काफी सारे लोग बोलते हैं बच्चा एग्जिट प्राइस भी। एग्जिट प्राइस मतलब बेचने का प्राइस, द सेलिंग प्राइस, व्हाट आई विल बी गेटिंग इट इफ आई सेल द एसेट्स। ऑर्डरली ट्रांजेक्शन मीन्स ऐसा सिचुएशन होना चाहिए कि बच्चा फोर्सफुली नहीं बेच रही हूँ कि हालत बहुत खराब हो गया, पैसे की जरूरत है, नहीं नहीं नहीं, नॉर्मली इट शुड नॉट बी अ फोर्स्ड सेल। ऐसा नहीं है कि मेरी कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है तो मुझे बेचना है, नहीं नहीं, नॉर्मल कंडीशन। मार्केट पार्टिसिपेंट्स मतलब जो इंटेलिजेंट है, बायर्स और सेलर दोनों भी इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं है भाई एक बंदे के ऊपर फोर्स है, नहीं 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 नहीं, बोथ आर नॉलेजेबल। एंड मेजरमेंट डेट मतलब आज के डेट पे, स्पेसिफिक डेट पे, ठीक है। सो दिस इज नोन एज अ IFRS 13 का बेसिक मीनिंग, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बेसिकली द फेयर वैल्यू पे मेजरमेंट। सो द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट और टू पे ऑफ द लायबिलिटी, टुडेज मेजरमेंट पार्टिसिपेंट्स मेजरमेंट डेट पे। स्टूडेंट्स जस्ट रीड इट वंस, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा जब हम एग्जाम की देखेंगे ना, तब IFRS लिखना पड़ता है, प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, थ्योरी बहुत लिखना पड़ेगा SBR में। exit price, orderly transactions, market participants and measurement date. Yeah. Let me check the chats. Can we proceed it, students, ahead?
Can I? Okay, I just saw the chats. Now it's fine. Now, my dear students, there are mainly three valuation approaches. There are mainly three valuation approaches. These approaches are maximize observable inputs and minimize reliances. Now, what is this valuation approach? मतलब बच्चों, before I take this approach, मुझे ये अप्रोच को ना एक बारी इसको लास्ट में लेना है, तो ये अप्रोचेस को मैं थोड़ी देर के लिए पेंडिंग पे रखती हूँ. अब मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल ठीक है, मैं इसी को पहले ले लेती हूँ. प्रिंसिपल एंड मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट, चलो ये ठीक है. Market based measurement. Or before that also, let's take one basic understanding. Now, मेरे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है मतलब ये ना एक बिल्डिंग है, मतलब एक लैंड या बिल्डिंग है, ऐसा बिल्डिंग है, ठीक है. अब ये बिल्डिंग है मेरे पास. अब मैं सोच रही हूँ इसका मैंने डेट ऑफ परचेस, बिल्डिंग नहीं है, लेट्स एक प्रॉपर्टी ही है, मतलब एक फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल, चलो ना फैक्ट्री भी नहीं, चलो ना एक लैंड है, चलो फॉरगेट अबाउट दैट. लेट्स से गाइस दिस इज अ लैंड जो हमने परचेस किया है फॉर $500,000, $500,000, ठीक है. स्टूडेंट्स, आई वाज हैविंग अ लैंड जो कि हमने परचेस किया है फॉर $5x. आज के डेट पे बच्चा मुझे देखना है कि आज इसकी फेयर वैल्यू क्या होगा. वन मोर एग्जाम्पल, आज आई एम हैविंग गाइस दिस आईफोन which I have purchased, let's say for example of $5,000. For example, आज अगर मुझे उसको सेल करना है, आज के डेट पे उसकी फेयर वैल्यू क्या होगी. तो अब बताओ मुझे बच्चों कि इन दोनों में से किसकी फेयर वैल्यू मुझे बहुत इजीली मिल सकता है. अब बोले मैम ऑब्वियसली लैंड से तो बेटर आई थिंक आईफोन अगर मैं बेच दूं आज कोई भी स्टोर में जाके, तो आई गेट टू नो कि व्हाट कैन बी द मार्केट वैल्यू, मतलब वो थोड़ा मुझे इजी मिलता है, राइट. क्यों, ऐसा क्या रीजन है. बिकॉज आईफोन है ना, वो क्या है पता है, उसकी वॉल्यूम ना मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेड हो रही है, राइट. तो बहुत इजीली उसका फेयर वैल्यू मिलना पॉसिबल हो जाता है. तो लेट्स से पता चला कि अगर मैं आज इसको बेच रही हूँ कॉज इट्स सेकेंड हैंड स्टफ, तो वो मुझे शायद दे रहे हैं $1,800. तो गाइज नाउ दिस विल बी माई प्राइस, ओके, दिस विल बी माई आज के डेट का फेयर वैल्यू. फाइन. वही चीज अगर मैं लैंड की बात कर रही हूँ, तो पता है जब मैं मार्केट में जाती हूँ तो मुझे इतना इजीली लैंड का वैल्यू नहीं मिल रहा फॉर एग्जाम्पल. तो मैं कैसे फाइंड करूं. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आपको लैंड का वैल्यू नहीं मिल रहा है तो आप ट्राई करो कि उसको बेच के कितना ही मिलेगा. तो आई हैव टू फाइंड द बेस्ट प्राइस, द बेस्ट एंड दी हाइएस्ट प्राइस कि मुझे कितना मिल सकता है, हाइएस्ट, जिसको हम बोलते हैं मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट में मुझे कितना प्राइस मिलेगा, मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट में मुझे कितना प्राइस उसका मिल सकता है. तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं ये लैंड को एज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी करके सेल करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लैंड को बच्चों एज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी करके सेल करती हूँ, तो मुझे कोई तो पर्सन रेडी है देने के लिए $750,000. बट अगर मैं इसको एज अ रेसिडेंशियल लैंड करके सेल करूं तो मुझे मिल रहा है 6,80,000. तो विच एवर इज हायर, सो स्टूडेंट्स आई विल टेक दिस एज अ फेयर वैल्यू. अब इसका ये मतलब नहीं होता है स्टूडेंट्स दैट यू हैव टू सेल दैट एसेट, नो, इट्स जस्ट दैट कि आपको ईयर एंड पे रिकॉर्ड करना है, इसीलिए यू आर फाइंडिंग इट आउट द वैल्यू गाइस. You want to actually record it at the year end, उसके लिए you are finding it out the valuation. ऐसा नहीं है कि आपको आज के आज उसको बेच देना है, no, you don't want to sell it. At least at the year end, I want to value the exact current value which I might fetch it if I sell it today. So for that, I'm trying to find out the fair value. Got it? It's nevertheless that I want to sell it off and then to fetch the money and then to record it. Otherwise, if I'm selling it off, I'll need to de-recognize the stuff. But here, वो matter है ही नहीं. It's just कि ईयर एंड पे आपको किस वैल्यूएशन पे उसको रिकॉर्ड करना है, दैट इज द मेन क्रक्स, दैट इज द मेन मैटर, दैट इज द मेन कंसर्न ऑन विच आप डिटरमाइन कर रहे हो. परफेक्ट, यस. चलो अब इसके लिए मेजरमेंट अप्रोच, मार्केट अप्रोच. तो मार्केट में चेक करना की कोशिश करेंगे हाईएस्ट एंड द बेस्ट यूज ऑफ द नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स. नॉन फाइनेंशियल एसेट्स मैं आपको IFRS 9 में बता सकती हूँ, बट आप ऐसे समझ सकते हो कि जो मनी में ट्रेडेड, इन शॉर्ट फॉर एग्जाम्पल
लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स, फिक्सचर्स, इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह की बात कर रहे हैं. अगर आप सेल करते हो तो क्या, ठीक है, क्या एसेट्स. ओके, फर्स्ट highest and the best use method. Before I take the highest and the best use method, I can take you, bacha. What do you mean by the word called principal market and most advantageous market? यहाँ पे भी most advantageous है बच्चा, highest use. तो उसके लिए पहले हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल मार्केट एंड द मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट. जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस, आईफोन बहुत इजीली, डोंट यू थिंक इन द मार्केट इट्स गेटिंग ट्रेडेड, क्योंकि बहुत वॉल्यूम में सब बेचते हैं, परचेस करते हैं. सो द मार्केट विद द हाइएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी, जिसकी फेयर वैल्यू मिलना बहुत ईजी है, दैट्स नोन एज अ प्रिंसिपल मार्केट. बट मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट वो मार्केट होती है बच्चों जो ना बहुत इजीली आपको मिलता नहीं है. लाइक लैंड है, अब फाइंड करना डिफिकल्ट होता है, तो मैं सोचूंगी कि अगर कमर्शियल है तो क्या प्राइस पे मिल रहा है, अगर रेजिडेंशियल है तो विच एवर इज गेटिंग मी द हाईएस्ट, आई विल टेक दैट. सो इफ नो प्रिंसिपल मार्केट एग्जिस्ट, यूज द मार्केट विद द हाईएस्ट नेट प्रोसीड्स, जो आपको पैसा मिल रहा है. So that's known as a principal market and the most advantageous market. I am not all talking about the formula. पहले आप ये समझो कि प्रिंसिपल मार्केट और मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट में डिफरेंस क्या है. बच्चों, प्रिंसिपल मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां पे हर वो चीज की वॉल्यूम ना बहुत ज्यादा ट्रेड होती है, तो प्राइस मिलना, फेयर वैल्यू मिलना बहुत ईजी है, ठीक है. बट मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट ऐसी मार्केट होती है जिसकी वॉल्यूम ट्रेड होनी इतनी कम होती है कि आपको फेयर वैल्यू मिलना डिफिकल्ट होता है. तो ट्राई टू फाइंड द हाईएस्ट अमाउंट दैट आई कैन फेच इट बाय यूजिंग द सेम, राइट. ठीक है, इतना समझ आया. नाउ हाईएस्ट एंड द बेस्ट यूज का मतलब क्या होता है, वही अब मैं हाईएस्ट का मतलब आपको समझा रही हूँ, ये वाले हाईएस्ट एंड द बेस्ट यूज का मतलब क्या होता है. सो फॉर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब लैंड फॉर एग्जाम्पल, द फेयर वैल्यू इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एसेट्स जो कि आप यूज कर सकते हो, राइट. द थ्री कंडीशंस आपको सेटिस्फाई होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकली पॉसिबल मीन्स अचीवेबल गिवन द एसेट साइज, लोकेशन, आप बेच सको. सेकेंड, आपको उसको बेचने का लीगल परमिशन है उस जोन वगैरह में. एंड फाइनेंशियली आपको पता है कि वहां से कुछ पैसा मिलने वाला है तो ही रिकॉर्ड करना. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बायोबेनिस plans to abandon an acquired R&D project. So there is a company, वो सोच रहे कि ये वाला R&D प्रोजेक्ट अब मुझे बंद करना है. सो अंडर IFRS 13 मुझे ना वो बोलते कि दिस इज इररिलेवेंट कि फेयर वैल्यू में क्या ही लिखूं. तो उन्होंने बोला कि आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये कंप्लीट है, क्या आपको सच में पैसा मिलने वाला है, और अगर आप बेच भी दोगे तो आपको हाईएस्ट एंड द बेस्ट यूज इसका क्या ही मिल सकता है. बस मैक्सिमम आपको उसी के बेसिस पे अमाउंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा. इन शॉर्ट, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर एसेट है जिसका फेयर वैल्यू मार्केट में मिलना बिकम्स डिफिकल्ट, यस, तो उस टाइम पे आपको चेक करना पड़ेगा गाइस. आप अगर उसको सेल ऑफ कर देते हो, अबैंडन कर देते हो, बेच देते हो, भंगार में क्यों नहीं बेच देते, स्क्रैप में भी, तो भी कितना ही मैक्सिमम पैसा आपको मिल सकता है, राइट. सो दैट इज द हाईएस्ट एंड द बेस्ट यूज. मूविंग इट नेक्स्ट, वी हैव प्रिंसिपल मार्केट एंड द मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट. तो प्रिंसिपल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे पर्टिकुलर आइटम बहुत हाईली ट्रेड होता है. बट मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट वो होता है जहां पे प्रिंसिपल मार्केट अवेलेबल नहीं है, एवरी नाउ एंड देन वो चीज सेल नहीं हो रहा है. तो आप सोचोगे कि बेस्ट प्राइस कहां से मिलेगा. अब उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा जिसका है फॉर्मूला एज सच दिस. इफ I'll mark it with maybe blue, no, pink color, maybe. Is fair value is equal to price in that market minus transportation cost. मतलब अगर मुझे fair valuation ढूंढना है of the highly volume traded stock, fair value is equal to जो भी आपको प्राइस मिल रहा है वो आप लोगे, माइनस द ट्रांसपोर्ट करने का अगर कुछ कॉस्ट है तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आप माइनस करोगे. बट अगर यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू फाइंड करना है तो फिर आपको लगेगा वॉट एवर इज द प्राइस, ठीक है, माइनस माइनस बच्चा ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट तो लगेगा ही, माइनस माइनस अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है बच्चा तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आप माइनस करोगे. सो इट्स प्राइस माइनस बोथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. या यस. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट्स से एक कोई तो कंपनी है, लेट्स से उसका मार्केट प्राइस है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का 120, उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रहा है
5, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट लग रहा है 110, तो मुझे लग रहा है कि 110 मुझे टोटल प्राइस मिलेगा। वही चीज अगर एशिया में आप देखो वही सब पर्टिकुलर चीज का तो 112, तो मुझे क्या लग रहा है पता है कि वाह ये अच्छा है, दिस इज मोर बेटर, दिस इज मोर बेटर इट सीम्स राइट, क्योंकि आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है। बट एक्चुअली ये सिचुएशन सही नहीं है। आपको फाइंड करना पड़ेगा कि अगर ये प्रिंसिपल मार्केट हो तो क्या मिलेगा। सो अगर प्रिंसिपल मार्केट है तो आई कैन ओनली माइनस दिस कॉस्ट। प्रिंसिपल है तो मैं खाली यही माइनस कर सकती हूँ। तो अगर इफ इट इज अ प्रिंसिपल मार्केट तो यहाँ पे मुझे पैसा मिलेगा 115 एंड यहाँ पे मुझे मिलेगा फॉर एग्जाम्पल 123। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ही चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे से भी बच्चा ट्रांजेक्शन कॉस्ट को मुझे इग्नोर करना पड़ेगा इफ इट इज अ प्रिंसिपल मार्केट। यस, सो जस्ट चेक इट वंस। स्टूडेंट्स प्लीज रीड इट वंस। सो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिटिकल रूल सेज दैट द ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या आर नेवर डिडक्टेड फ्रॉम द फेयर वैल्यू, दे आर ओनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई कि कौन सा मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट है। आप कभी उसको माइनस नहीं करते, फेयर वैल्यू तो उतना ही रहेगा। देखो गाइस गड़बड़ मत करना, फेयर वैल्यू तो हमेशा उतना ही रहेगा, प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। पर आपको देखना है कि विच इज द बेस्ट एडवांटेजेस, मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट। तो यहाँ पे देखो आई जस्ट गिव यू वन हिंट। ओके देखो आई गिव यू वन हिंट। यहाँ पे अगर आपको फाइंड करना है कि कौन सा बेटर है, खाली आपने क्या कर दोनों माइनस कर दिया, तो मुझे लग रहा है कि भाई एशिया बेटर है। एशिया कैसे बेटर है? बाय मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट के हिसाब से। बट जब आप प्राइम प्रिंसिपल मार्केट के हिसाब से करते हो या फेयर वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हो तो फेयर वैल्यू आएगी ए माइनस बी। ए माइनस बी के हिसाब से ही आपको फेयर वैल्यू मिलेगी दोनों की भी। राइट। यस, सो दिस इज व्हाट इट इज। सो फेयर वैल्यू में से मत माइनस करना। Just to calculate, I'll get it. Okay. So these critical rules are very important. Transaction costs are only deducted. Only the transaction costs are deducted, not the amount. Okay. Yes. Yeah. I hope it's very clear. Yes, students. Yes. I don't think that there is much doubt into it. Yes. I hope everything is then fine. We'll check it. Yes. Okay. Yeah. Moving it next. Moving it next. Moving it next. Yes. Okay. Yes. Before I take the fair value hierarchy or moving it to the next points, students, fair value hierarchy पढ़ने से पहले I'll just try to recollect the topic that we have done it so far. So first thing IFRS 13. Yeah, when I speak about the introduction to IFRS 13, we have to calculate the fair value, right? So fair value calculate करने के लिए I have to understand the meaning of fair value. सो इट इज द प्राइस जो आप पे करोगे, ठीक है, व्हेन यू सेल दी एसेट्स तब आपको कितना मिलेगा, या आप लाइबिलिटी पे करोगे तो कितना पे करना पड़ेगा आज के रेट पे, उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू। अब फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपके पास मार्केट में मार्केट बेस्ड है कि नहीं, मतलब अगर आप मार्केट में उसको सेल करो तो कितना पैसा मिल रहा है। अगर फिर मार्केट की बात करें तो वो प्रिंसिपल मार्केट है कि मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट है। मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट में आपको ट्रांजैक्शन और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को माइनस करके देखना पड़ेगा कहाँ पे आपको सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है। सो दैट इज द मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट। एंड प्रिंसिपल मार्केट क्या होता है कि जो बहुत हाईली ट्रेड होता है वहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को माइनस करने की जरूरत नहीं होती है। एंड फेयर वैल्यू में तो कभी भी माइनस नहीं करते, तो आपको मिल जाएगा द अमाउंट, राइट।
अब से फॉर एग्जाम्पल मुझे फेयर वैल्यू फाइंड करना है, तो ऑलवेज एक चीज है कि जब भी आपको बच्चों फेयर वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, तो आपके पास 3 लेवल होते हैं टू फाइंड इट आउट इन द हायरार्की। गाइस, फेयर वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चा वी हैव 3 लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2 आउटपुट एंड लेवल 3 आउटपुट। अगर लेवल 3 में आप आते हो तो आपको वैल्यूएशन अप्रोच यूज करना पड़ेगा, तो आपको वैल्यूएशन अप्रोचेस यूज करने पड़ेंगे। जो मैंने आपको बोला ना कि 3 अप्रोचेस है, वो मैं आपको लास्ट में कराऊंगी, तो आपको वैल्यूएशन अप्रोच यूज करना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी पोजीशन लेवल 1 में आती है तो आपको फेयर वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर आपके लेवल 2 में आती है तो भी ठीक है, आपको फेयर वैल्यू मिल जाएगा, बट अगर लेवल 3 में आते हो तो फेयर वैल्यू फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो फिर आपको ये वैल्यूएशन अप्रोचेस को फॉलो करना पड़ता है टू फाइंड इट आउट। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। करेक्ट? यस। सो लेवल 1 में कौन से एक्चुअली एंटिटीज आती है या क्या आता है लेवल 1 में? तो लेवल 1 एक्चुअली, अगर आप लेवल 1 की बात करते हो तो ऐसी मतलब अगर मेरे को फाइंड करना है, लेट्स से मैंने बोला कि मेरी कंपनी, लेट्स से आई एम हैविंग अश्विनी, आई एम हैविंग लेट्स से 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। ओके, खाली मैंने ऐसा बोला आपको कि मेरे पास 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। आप बोलो इसकी फेयर वैल्यू फाइंड करना इजी है कि हार्ड है? आपने बोला मैम कितना इजी है? मैम आज के रेट पे खाली फाइंड करो कि पर वैल्यू शेयर का प्राइस क्या है। अग्रीड? पर वैल्यू कोटेड शेयर का प्राइस क्या है मुझे आराम से पता चल जाएगा। अग्रीड? सो दैट काइंड ऑफ कैटेगरीज फॉल्स अंडर लेवल 1, जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। फॉर एग्जाम्पल, कोटेड प्राइस इन द एक्टिव मार्केट अगर आपको मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल शेयर प्राइस, अगर वो एनएससी, बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रिकग्नाइज्ड है, तो यू नो इट इज वेरी इजीली अवेलेबल कि आप उसकी फेयर वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इट्स द मोस्ट रिलायबल। मीन्स अगर आपके पास इन शॉर्ट शेयर है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, तो उसका वैल्यूएशन फाइंड करना इट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग। ये सिंपल है, सो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा सिंपल फेयर वैल्यू। बट लेट्स से अगर मेरे पास कोई ऐसा एसेट है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं लेवल 2 में आ रही हूं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई स्पीक अबाउट लेवल 2, लेट्स से मेरे पास ये मशीनरी है, बट मुझे पता नहीं है कि इसकी फेयर वैल्यू क्या लूँ, तो मैं देख रही हूं कि काफी सिमिलर मशीनरी है एक्स लिमिटेड के पास भी, और उसने ये मशीन का वैल्यूएशन $20,000 रखा है, तो मैं शायद कंपेयर कर सकती हूँ। मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ है। So it's known as observable input, means observable input other than quoted price. Prices for similar assets. तो आप चेक कर सकते हो कि मार्केट में वो सिमिलर एसेट का वैल्यूएशन क्या है। ठीक है, लाइक यील्ड ऑफ अ कंपेरेबल बॉन्ड, मतलब आप इससे यहाँ पे सिंपली कंपेयर कर सकते हो कंपेरेबल बॉन्ड, या प्राइस ऑफ द कंपेरेबल और सिमिलर प्रॉपर्टी। तो मुझे पता चलता है कि ठीक है, अगर ऐसी ही कंपनी है तो इसका प्राइस फेयर वैल्यू ये लिखा हुआ है, तो चलो हम ये लेवल पे पहुंच जाते हैं। लेवल 1 क्या होता है? इस लेवल 1 ऐसा है कि आपके पास शेयर्स है किसी कंपनी के, तो उसकी वैल्यूएशन फाइंड करना है। तो शेयर की वैल्यूएशन अगर आपको फाइंड करना है तो यू गेट द मार्केट प्राइस पर शेयर, तो आप उसके बेसिस पे लिख दोगे। लेवल 2 क्या होता है? ऑब्जर्वेबल आउटपुट, मतलब मेरे पास ये एसेट है, अगर मुझे ढूंढना है तो मैं मार्केट में चेक करूंगी कि वैसे सिमिलर एसेट की वैल्यूएशन क्या है। बट लेट्स से मेरे पास कोई ऐसा एसेट है यार, एक तो वो अनलिस्टेड है, और गाइस इतना डिफिकल्ट है ना, मतलब उसकी वैल्यूएशन फाइंड करना, वैसा कोई सिमिलर आइटम भी नहीं है, मैं ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रही हूँ, तो इट फॉल्स अंडर द थर्ड कैटेगरी विच इज नोन एज गाइस अनऑब्जर्वेबल इनपुट। तो एंटिटी को डेवलप करना पड़ेगा उनके खुद के अजम्पशंस, और जब मिल नहीं रहा है वैल्यूएशन बच्चा, जैसे कि कोई रॉयल्टी है, इंटरनल ब्रांड है, तो जब वो लेवल 3 में फॉल करते ना, तब फेयर वैल्यू तो लिखना तो पड़ेगा कुछ तो। देन यू हैव टू गो विद द 3 वैल्यूएशन अप्रोच, फिर आपको जाना पड़ेगा विद द 3 वैल्यूएशन अप्रोच। गाइस अगेन जस्ट रीड इट। So whenever there is a hierarchy, there are 3 hierarchies, level 1, level 2, level 3. level 1 में quoted shares आते हैं, level 2 में observable inputs जो दिख सकते हैं, कंपेयर हो सकते हैं, थर्ड लेवल में अनऑब्जर्वेबल, दिख ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, क्या वैल्यू करूं, राइट? So here there are level 1, level 2 and level 3 inputs. So students with more holding has, let's say for example there is a company, just one example, okay, there is an example, there is a company which is having 3 assets,
वी हैव टू मेजर कि इन विच कैटेगरी दे आर फॉलोइंग इट। अगर आपके पास लिस्टेड शेयर्स है तो बिना सोचे समझे आप उसको लेवल 1 में डाल दो। एग्रीकल्चर लैंड है बट अगर आप उसको ऑब्जर्व है कंपेरेबल कर सकते हो तो बच्चा उसको लेवल 2 में डाल दो। बट अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है बच्चा जिसका वैल्यूएशन मिलना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट अजम्पशंस पे, तो वो लेवल 3 में चला जाएगा। सो इट्स गोना गो इनटू लेवल 3। एंड द थिंग इज के लेवल 3 में जब वो जा रहा है तो वो अनऑब्जर्वेबल भी है, मतलब आपको उसकी वैल्यूएशन भी मिल नहीं रही है, तो in that category it will fall under level 3 outputs. Just check this once. Just check this once. Yeah. So this is what it usually happens. ठीक है? I'll just check the chats once. Yeah. Yeah, guys. I think it's done. So see, level 1 if it is quoted, level 2 if it is similar observable, and level 3 if it is unobservable. ठीक है? तो ऐसे ही आपको 3 categorizations करने होंगे. I'll just delete it off everything. Yes. So I'll just draw it over here. So guys, वहाँ पे एक हायरार्की होती है, level 1 hierarchy, level 2 hierarchy and level 3 hierarchy. Guys, if it is falling under level 1 hierarchy, वो होते हैं guys quoted shares में, जिसका मार्केट प्राइस आराम से वो होते हैं लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में, तो मिल जाएगा। Guys, when it comes to level 2, guys, it is observable. ऑब्जर्वेबल इनपुट है, मतलब क्वाइट सिमिलर है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं क्वाइट सिमिलर, तो आपको मिल सकता है। पर अगर वो लेवल 3 में आता है विच इज अनऑब्जर्वेबल, तो थर्ड कैटेगरी में आते हैं, तो आपके पास बच्चा वैल्यूएशन अप्रोचेस है। सो देर आर मेन थ्री टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन अप्रोचेस। सो फर्स्ट अप्रोच होता है बच्चा मार्केट अप्रोच, मतलब आप मार्केट में प्राइस देखोगे। सेकेंड अप्रोच इज कॉस्ट अप्रोच एंड थर्ड अप्रोच इज इनकम अप्रोच। Three approaches: market approach, cost approach and income approach. So here if you see, जब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे थ्री वैल्यूएशन अप्रोच कब होता है बच्चा, जब आपके पास मतलब अनऑब्जर्वेबल सिचुएशन होती है, अनऑब्जर्वेबल आपको मिल ही नहीं रहा है, यू आर फॉलोइंग अंडर लेवल 3, तो आप किस कैटेगरी पे रिकॉर्ड करोगे फेयर वैल्यूएशन, तो आप देखोगे कि मार्केट में कुछ वैल्यूएशन मिल रहा है क्या, क्या आपके पास उसकी एक्टिव मार्केट है। अगर आपके पास उसकी एक्टिव मार्केट है तो आप उस पर लिख लोगे, अगर लिस्टेड प्राइस है तो फिर लिख लोगे। कॉस्ट अप्रोच, तो आई फाइंड इट आउट कि अगर वो सेम चीज को मैं सेल करूं या वैसे ही चीज को मैं सेम परचेज करूं तो मुझे उसको रिप्लेस करने का कॉस्ट कितना आता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, आई फाइंड इट आउट। और इनकम अप्रोच, मैं सोचूंगी कि यार अगर ये मशीन है, इसको मैं और 2 years यूज करती हूँ तो मैं कितना कितना इनकम अर्न करूंगी, जितना भी इनकम अर्न करूंगी आई ट्राई टू ब्रिंग इट एट अ present value and book at that. Okay, just read it. These are the three approaches. Market approach means I use the price which I can fetch it from the market. अगर मैं उसको कंपेयर करूँ या मिल रहा है तो ठीक है। कॉस्ट अप्रोच स्पेशलाइज एसेट्स के लिए होता है कि अगर मैंने उसको सेल कर दिया तो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट इट, या वैसी ही चीज को अगर मैंने परचेज किया तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल कस्टम सर्विस सिस्टम है, अगर मैं बेचती हूँ या रिप्लेस करती हूँ तो इतना अमाउंट है, तो शायद आई टेक दैट। और इनकम अप्रोच मीन्स इफ आई एम हैविंग दिस मच एज एन एसेट, अगर उसको मैं यूज करती हूँ तो कितना पैसा अर्न करूंगी, बाय यूजिंग द डिस्काउंटिंग फैक्टर विल ट्राई टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज नोन एज एन इनकम अप्रोच। सो दीज आर द थ्री वैल्यूएशन अप्रोच विच आई हैव टू यूज इट पोस्ट लेवल 3। सो वही बोला है, दैट्स ऑल गाइज। एंड नाउ दैट जस्ट टेलिंग दैट द लास्ट टॉपिक भी, द लास्ट पॉइंट दिया कि भाई IFRS 13 अगर आप यूज करते हो वो बच्चा, और स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर लेवल 3, क्योंकि अगर आप लेवल 3 पे जा रहे हो बच्चा तो आपको अप्रोचेस यूज करने पड़ेंगे, करेक्ट, कुछ अजम्पशंस लगाने पड़ेंगे। तो यू हैव टू गिव अ प्रॉपर डिस्क्लोजर इन द नोट्स कि आपने कौन सी वैल्यूएशन टेक्निक यूज की है, कौन से हायरार्की में आ रहे हो, क्या अजम्पशंस लगाया है, एंड लेवल 3 में क्या सिचुएशन है। गाइस दैट्स ऑल, and these are certain formulas and the questions. If you want, maybe we can take it like okay, we'll try to take it tomorrow, let's take it today itself. Okay, the first example, let's take it. Mr. K, okay, company K Limited, you have your calcs with you. So K Limited wants to settle 1 lakh in 2 years and the borrowing rate is 5%, market rate is 7%. तो आप सोचो बच्चों 2 years के बाद he wants to pay 1 lakh. So what is the present value today and what is the discounting rate? Bachcha, discounting rate today is 5%.
तो अगर आप उसको डिस्काउंटिंग रेट से आज प्रेजेंट वैल्यू पे लाओगे बच्चा, आप करो ना गाइस, आप करो ना, 100,000 divided it by 1.05 equals to I'm going to get around 907,307. If you're using 7% guys, it's going to increase your liability, जो कि सही नहीं है. Similarly here 500 square meter property is there, comparable prices इतने सारे दिए हुए, 1180 हो सकता है, 1200, 1220, 1240. अरे यार मुझे बहुत डाउट हो रहा है कि मैं कितने पे लूं, तो I might take a median मतलब बीच में वाला. So I think the third one I'll take it into 500 square meters, or median also I can take it. So maybe I think ये better लग रहा है, तो फिर मैं उसके हिसाब से भी ले सकती हूँ. That's all guys. And some formulas are given, you can just see present value का formula, future value का formula, mean and median का prices. That's all simple guys. So yeah, you can just have the takeaway, and yeah, we are just done with this chapter. So chapter number 3 भी हमारा यहाँ पे complete होता है, जिसमें कि हमने सीखा है IFRS 13 में किस तरीके से हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं. What is the definition? What are the 3 approaches which we are using it post level 3? What is the highest and the best use method? Market कैसे होते हैं? There is most advantageous market and principal market, the hierarchy, liability and the disclosures. So yes, my dear students, with these we have completed our chapter number 3 also. आई थिंक मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ, बट मुझे लग रहा है कि इतना भी डिफिकल्ट है नहीं. सिचुएशंस आर गेटिंग इट बेटर, एंड आई एम फॉर श्योर कि आप लोग भी इतने अच्छे से इस चीज़ को समझ पा रहे हो. एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, आई एम ओवर हियर. आप कभी भी पूछ सकते हो बच्चों. देयर इज नो डाउट लाइक कि हाउ इट विल बी रीच्ड. आई एम रियली एक्सपेक्टिंग अ काइंड ऑफ कमेंट्स और अ क्वेरीज फ्रॉम योर एंड, सो दैट हम है ना दोनों भी एक लेवल पे पहुंच सके. स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर स्टडिंग ACCA स्टडी हब में से, और जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे गाइज, यू विल बी लिटरली स्कोरिंग नाइस मार्क्स. एंड हमारे एक स्टूडेंट को SBR में ऑल ओवर ग्लोबल लाइक डेनमार्क में भी रैंक 1 मिला है, एंड रैंक 1 है. हाँ ठीक है, होते हैं, मिलते हैं. तो स्टूडेंट्स, वाई नॉट फ्रॉम अस, है ना. तो अगर आप भी वैसे ही पढ़ोगे जैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स यू नो पढ़ना भी फन हो जाएगा, एंड डेफिनेटली रैंक्स भी आपके ही आ जाएंगे. तो स्टूडेंट्स, गिव योर 100%, कम हैव अ डाउट सॉल्विंग. एंड जैसे ही मेरी आपसे अगर कम्युनिकेशन जितनी जल्दी हो पाती है स्टूडेंट्स, आई वुड वॉन्ट टू टेक टेस्ट ऑल्सो फॉर योर, बिकॉज हमने अराउंड 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं. तो आई थिंक टेस्ट विल हेल्प अस टू लाइक साथ में पढ़ने हो जाएगा, तो अच्छा हो जाएगा. या so no issues guys, let's meet tomorrow with the more chapters, with new topics, with more new standards. And students, ऐसे ही है सब fun छोटे छोटे मजे आएंगे. Okay, thank you so much. Take care students, take care. Thank you guys, thank you so much. See you tomorrow. Thank you.